Welcome everyone. Welcome everyone to today's program. So let's start with Devi's Stotra. Ya Devi Sarva Bhuteshu Ma Brahmacharini Rupena Sansita. Namastasyai, 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 Namo Namaha. Today is the second day of Navratri and is dedicated to Ma Brahmacharini, who is known as a symbol of wisdom and knowledge. Plaksha Ummat has a wonderful compilation on Ma Brahmacharini to share with us. Over to you, Plaksha. Plaksha, I'll just share the screen and then you can do the presentation. Yeah, Plaksha, we are ready. That's the last slide, first one. You ready, Plaksha? Yes. Yeah, let's go. As the start of this event, I want to wish everyone a happy Navratri. I hope this year of your celebrations is filled with happiness and love. Wishing you all a very blessed and joyful Navratri, full of blessings and smiles. The past 2 years have been very tough, but may Ma Durga remove all the obstacles and dangers in our life. Happy Navratri. So before I start off the presentation about Brahmacharani Mata, I'd like to start off with a little information about what is Navratri. So Navratri is best known as a Hindu festival celebrated on a span of 9 days, where people do fasting during the span of those days. The festival is celebrated every year in autumn. It is observed for different reasons and celebrated differently in different parts of India and the Indian culture sphere. The main thing about Navratri for everyone, it is a time of religious reflection and fasting, and for others, it is a time for dance and feasting. Following the fasting, the customs include observing a strict vegetarian diet and abstaining from alcohol and certain spices. Navratri, the festival honors and celebrates Goddess Durga for defeating the demon. Navratri's translation is 9 nights. Ma Durga. Goddess Durga is one of the most revered deities among Hindus. Ma Durga is considered a symbol of strength, protection, and courage, destruction, and motherhood. In almost all her portraits, Ma Durga is seen seated on a lion or tiger. Lion is the vehicle for Ma Durga. Moving on to Brahmacharani Mata. She is worshipped on the second day of Navratri, and it is celebrated to worship the goddesses. She is the second incarnation of Mother Durga, who is worshipped on the second day. This Devi is the unmarried form of goddess Parvati, who was born at the home of Daksha Prajapati. Goddess is extremely radiant and majestic. She resides at Swadhisthana Chakra, and when she is worshipped with sheer reverence, she helps you get rid of any negativity and blesses you with prosperity, happiness, peace, wisdom, and success. She blesses us all with great emotional strength, perseverance, tremendous willpower, and confidence in the most trying times of our lives. Brahmacharani Mata is always dressed in orange, which symbolizes the sacrifice that she has done. However, the color of the devotees is royal blue.
She is worshipped on Vidya by offering flowers, akshat, roli, and sandalwood. Maiden Parvati is her married form who resolved to marry Shiva. Her parents learn of her desire, discourage her, but she pursues what she wants and did tapasya for about 5,000 years. Everyone in the universe at the time was impressed by the tapas performed by Devi. Shiva finally accepts her and they get married after the many controversies Devi went through. Her abode is the Swadhisthana Chakra. Brahmacharya signifies bachelorhood and the color white signifies purity. As the end of this presentation, I want to wish a happy Navratri once again and hope you all have a very blessed Navratri. Thank you. Wonderful. That was a great presentation, Plaksha. And yeah, looks like you've done quite a good lot of homework to get this presentation out. Well done. Thank you. Now it's time to hear Ma's praise. So we have amongst us Lovely Ji who will be singing a bhajan. Yeah, सबको नमस्कार. Am I audible? Yes, you're audible. Okay, thank you. मैं राम जी का भजन गा रही हूँ. श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है. श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है. करते हो तुम ही भगवन, मेरा नाम हो रहा है. श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है. पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है. हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है. करती नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है. करते हो तुम ही भगवन, मेरा काम हो रहा है. श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है. तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है. किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है. तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है. श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है. करते हो तुम ही भगवन, मेरा काम हो रहा है. मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं. टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं. तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है. श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है. करते हो तुम ही भगवन,
करते हो तुम ही भगवन, मेरा काम हो रहा है। करते हो तुम ही भगवन, मेरा काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। ये सब माता की कृपा है, राम जी की कृपा है कि सब हो रहा है। इवन लॉकडाउन में भी हम कर रहे हैं ऐसा। तो ये सब सबको नमस्कार, नवरात्रों के मुबारक। नमस्कार। थैंक्स अ Thank लॉट लवली जी, बहुत बहुत ही मधुर गाना था। सो अभी राम जी की बात छेड़ी गई है, so we're going to go to Ayodhya right now. So it's a given that all of us are aware of Ramayana. After the Supreme Court's decision, we are all blessed that a Bhavya Ram Mandir is being built in Sri Ram Lala's Janmasthan in Ayodhya, and that too during our lifetime. Miss Shivangi Dikshit, who is amongst us, hails from Ayodhya. So she's done a lot of hard work in providing us Ayodhya Darshan from where we sit today in our homes. What better than to call on Miss Shivangi to be our local guide in Ayodhya and take us on a rendezvous to Ayodhya Dham. Shivangi, I'll just share the screen and then you can start introducing us to the presentation. Thank you very much for that. प्रणाम आप सभी को। नवरात्र के इस दिन, दूसरे दिन के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। Myself Shivangi Dikshit Magazine. I'm a mother of two named Shraddha and Trisham. Professionally, I work in biotechnology from a company named Thermo Fisher Scientific. चलिए शुरू करने से पहले हम सब फिर से माता रानी को याद कर लें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम। चलिए शुरू करते हैं अयोध्या की महिमा के बारे में। श्री राम, श्री सीताराम, श्री अयोध्या धाम। अयोध्या को अवध नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि नाम से ही विदित होता है। अयोध्या जिसे कोई हरा ना सके, जो कभी युद्ध में हारे ना हो, ऐसी अयोध्या श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थान और महाकाव्य रामायण की स्थापना है। अयोध्या को हिंदुओं के लिए 7 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से पहला माना जाता है। अयोध्या को भारत के 7 सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। अयोध्या की महानता 2 प्रकार से प्रचलित है। एक तो स्वयं प्रभु परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम अयोध्या में अवतरित हुए हैं, और दूसरी ओर जिस अयोध्या पर भगवान स्वयं जन्म लिए हो, वह अयोध्या भवसागर को पार कराने वाले अयोध्या है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि अयोध्या के नक्शे को अंतरिक्ष से देखा जाता है, तो यह एक नाव समान अयोध्या दिखाई देती है। अयोध्या के तो वैसे बहुत ही सारे तीर्थ और मंदिर हैं, लेकिन प्रमुख मंदिर सरयू घाट मंदिर है, नागेश्वर मंदिर है, हनुमानगढ़ी मंदिर है, कनक भवन मंदिर है और राम जन्मभूमि मंदिर है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अयोध्या सरयू नदी के तट पर। Could we please play? सरयू घाट से अयोध्या जी सरयू नदी। सरयू नदी श्री अयोध्या जी।
Thank you very much. Now I would like to tell something about Sarjuji Nadi and Mandir as well. So लखनऊ से लगभग 135 किलोमीटर पूर्व में सरजू के तट पर स्थित अयोध्या को प्राचीन काल में साकेत कहा जाता था। सरजू नदी को रामायण की कहानी का अभिन्न अंग भी माना जाता है। पुराणों के अनुसार सरजू का अवतार गंगा से भी पहले हुआ था। अयोध्या में सरजू जल के बिना भगवान की पूजा नहीं की जाती। सरजू जी के दर्शन और नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर को नदी के जल से अभिषेक करने के बाद ही अयोध्या की यात्रा शुरू की जाती है। इस नदी के जल में स्नान करने का विशेष महत्व है। सरजू जी को ब्रह्मचारिणी भी कहा जाता है, इसलिए इस नदी के जल में स्नान का विशेष महत्व है। यह भी माना जाता है कि भगवान श्री राम का निधन सरजू नदी के तट पर ही हुआ था। श्री सरजू गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामचरितमानस में श्री लिखा सरजू है, घाट अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू बह पावन। ऐसी अयोध्या हमारी जिसके उत्तर दिशा में माँ सरजू नित्य प्रतिदिन सदियों से अपने जल प्रवाह को बिखेरती रहती हैं, और यही माँ सरजू नेत्रजा भगवान के नेत्र से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उनको नेत्रजा भी कहा जाता है। चलिए अब हम आपको नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन कराते हैं। Could you please play number 2? Would you number 2, please? राम की पैड़ी श्री अयोध्या धाम। श्री नागेश्वर नाथ मंदिर श्री अयोध्या धाम। प्राचीन सरजू मंदिर श्री अयोध्या धाम। Thank you very much. So जैसे कि आपने देखा नागेश्वर नाथ मंदिर, यह मंदिर अयोध्या के राम पेड़ी में आया हुआ है। कहा जाता है कि नागेश्वर नाथ के मंदिर की स्थापना श्री राम के पुत्र कुश ने की थी। किंवदंती है कि सरजू में स्नान करते समय कुश ने अपना बाजकुंड को खो दिया था, जिसे एक नाग कन्या ने उठाया था, जिसे उससे प्यार हो गया था। चूंकि वो शिवजी की भक्त थी, इसलिए कुश ने उनके लिए यह मंदिर बनवाया था। यह भी कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान श्री राम के काल के बाद अयोध्या के विनाश के बाद बच गया था। इस मंदिर के माध्यम से विक्रमादित्य को मिला अयोध्या। महाशिवरात्रि के त्योहार यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए हम अब आपको हनुमानगढ़ी मंदिर की सैर कराते हैं। Could you please play the video 3A and 3B as श्री well? राम Yes, please. भवन मंदिर श्री अयोध्या धाम। Oh, ना जी, ये कनक भवन है actually. Sorry about that. That would be 3 हनुमानगढ़ी। सर जी, अगर आप भवन हनुमान मंदिर श्री अयोध्या धाम। नहीं सर जी, ये कनक भवन है। देखिए हनुमानगढ़ी मंदिर का टाइटल लगाया था अपने लोगों ने, 4th नंबर है, ये नंबर 6 है अपना, I mean 5, नंबर 4 प्ले करना है अभी। Just a minute, I'll get it. Yeah, sure.
We have titled that Hanuman Ghadi Mandir. If you can see that, you can see it on top of the building as well. We did mix 3 of them, right? So that Oh. was the track, because we Yeah. did mix Sri Ram Ki Pedi, Hanuman Gadi Mandir, and Hanuman. Ji. So I think this is the same video, if I'm not wrong. I think it's not Kanak Bhavan, am I right? Yeah, you can- Kanak Bhavan. Yeah, Kanak Bhavan is the next one. So Okay, I'll- cool. Yeah, no, my bad. All good. श्री राम की पेड़ी है। Here, Kanak Bhavan hai. If you can see, there would be a different video as well saying Hanuman Ghadi. भवन मंदिर श्री अयोध्या धाम। आगे जाके आएगा। Okay, ji. Okay, ji. If not- This is Kanak Bhavan. I will let you know its importance later on after this video, guys. Thank you for your patience. मुख्य प्रवेश द्वार श्री कनक भवन। श्री राम की पेड़ी अयोध्या धाम। श्री हनुमानगढ़ी श्री अयोध्या धाम। प्रवेश द्वार श्री हनुमानगढ़ी। भैया दिल्ली से आए हैं। जी जी हाँ भैया कहाँ ढकेला तुमने साहब पंडित जी और गुरु जी कहाँ लगाना श्री हनुमानगढ़ी श्री अयोध्या धाम। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा हनुमान गढ़ी मंदिर और कनक भवन मंदिर as well, मैं आप दोनों को इस बारे में श्री राम की पेड़ी अयोध्या Is it- धाम। Is it still going on? Or I can start my stuff? Can we play this as well, please? The Kanak Bhavan? भवन मंदिर श्री अयोध्या धाम। on video.
मुख्य प्रवेश द्वार श्री कनक भवन। श्री अयोध्या धाम, श्री कनक भवन, श्री अयोध्या धाम। श्री कनक बिहारी सरकार। Thank you very much, Subhash ji. So, चलिए आप मैं सैर तो करने लेके चलेंगे, लेकिन I just would like to tell you importance of हनुमान गढ़ी and कनक भवन together. So, जैसा कि आप सभी ने देखा हनुमान गढ़ी मंदिर, श्री हनुमान गढ़ी अयोध्या में सबसे लोकप्रिय मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि गुफा श्री हनुमान का निवास स्थान हुआ करती थी और रामकोट की रक्षा करती थी। मंदिर में देवी अंजनी का मंदिर भी है, जिसकी गोद में श्री हनुमान जी हैं। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि देवता सभी प्रार्थनाओं का उत्तर यहाँ देते हैं। श्री हनुमान जी अयोध्या में राजा स्वरूप विद्यमान है। वह अयोध्या के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान देश की रक्षा भी करते हैं। इसी तरह से श्री हनुमान सत्पीठ के विराजमान होने के कारण अयोध्या की गरिमा को शोभित करती है। श्री हनुमान जी जो सजग प्रहरी की तरह प्रत्येक समय अयोध्या को सभी विपत्तियों से बचाते हैं एवं सभी अयोध्या वासियों पर अपनी कृपा एवं रक्षा बनाए रहते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, श्री हनुमान। चलिए अब मैं आपसे कनक भवन के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी, फिर अपने बाद में राम जन्मभूमि मंदिर चलेंगे। तो कनक भवन मंदिर कहा जाता है कि रानी कैकेयी ने माता सीता को कनक भवन में दिखाई में दिया था जब उनका विवाह श्री राम के साथ हुआ था। सोने के घर के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सोने से बना घर। यहाँ भगवान श्री राम और सीता के सोने से बने मुकुट पहने हुए भी मूर्तियां हैं। चलिए अब हम आपको चलते हैं राम जन्मभूमि मंदिर की सैर कराने। हाँ जी शिवाजी, would you please play that video?
Thank you. Can we share the resemblance of Ram Janmabhoomi Mandir as well? So that's the clearest picture or pic we can see of them. Thank you, Subhashi. I'll just continue my description. So जैसा कि आप सभी ने देखा राम जन्मभूमि मंदिर, जैसा नाम से विदित होता है, श्री राम जन्म का स्थान, जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वो जगह जिस पर भव्य मंदिर बनने जा रहा है। हम सभी भक्तों की, सभी जनमानस की एक बहुत प्रतीक्षित आकांक्षा पूरी होने जा रही है। ऐसा अनुमान लगा जा रहा है कि 2024 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पूरे होने के साथ अयोध्या एक वैश्विक आध्यात्मिक और पर्यटन स्थल बनने की ओर अग्रसर है। I really would like to show that futures architect building of Ram Janmabhoomi Mandir. Suhasji, so this is how it's proposed Ram Janmabhoomi temple is going to look like as per the proposal, which is going to get finished in 2024. Thank you very much, Suhasji. So, भारत के सबसे बड़ा त्योहार दिवाली अयोध्या में वापस देखा जा सकता है, जब रावण का वध करके घर लौटे विजयी श्री राम का स्वागत करने के लिए पूरा शहर मिट्टी के दियों से जगमगा उठा था। मैं कुछ इन पवित्र शब्दों से अपना सेशन समाप्त करना चाहूंगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से हम जीवन के मूल्यों, रंग, विचारों का ज्ञान होता है। श्री राम की पितृभक्ति, पति धर्म, पिता धर्म, राजा धर्म एवं कुशल योद्धा के सभी गुणों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया था। आज की अयोध्या नगरी उन्हीं श्री राम के आदर्शों का निर्वहन कर रही है। धन्यवाद। I hope you all enjoyed this beautiful Ayodhya significant session, which I shared with you all today. Really appreciate it for your patience. I especially would like to thank and acknowledge my dad, Dr. Pranab Kumar Dikshit, Uncle Mahendra Mani, Pandit Ramendra Mohan Mishra ji, Uncle, and Vikramaditya Uncle. Because of you all only, I could able to present our beautiful native hometown, Ayodhya. Really appreciate it for making this possible. A very big thank you from core of my heart. A huge thanks to my own beautiful family in New Zealand and in India who always supported me and encouraged me in each step of my life. I would like to especially thank Trimala Auntie for trusting me and giving me this wonderful opportunity to express and taking you all in a journey of this sacred Ayodhya. Once again, thank you all for joining this session. Have a lovely evening. Thank you. Jai Mata Di. Namaste. Namaste. Thanks a lot, Shivangi. It was a wonderful compilation. And I believe everyone enjoyed going to Ayodhya, sitting at home here, because in this world of COVID-19 situation, it's very hard to travel anywhere, but you, with the help of your family and friends, have taken us to it. This is the first time ever I've seen Ayodhya in such close quarters. I'm really glad that you did this presentation. It's my honor. Thanks a lot. Thank you.
Thank you very much. Now we have Mrs. Urmila Dharji, who is a teacher. She's an artist and she's famous because she's an artist who performed in Shortland Street as well. So she's going to do an abhinaya right now for all of us. Urmila ji. नमस्कार, मेरा सबको प्रणाम और इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर सबको बधाई। मैं इस पर्व पे एक ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ माता सीता को। माता सीता का त्याग हमें नहीं भूलना चाहिए। उनके त्याग से ही ये सारा जो संभव हो उसका जो राम जी कर सके, मैं ऐसा समझती हूँ। ये छोटा सा एक्ट है, तो मैं कोई बहुत बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ, पर मैं अपना प्रयास कर रही हूँ। तो ऐसे है, जिस समाज ने मेरे चरित्र पर संदेह किया, जिस समाज ने मुझ पर लांछन लगाए, अब उस समाज में पुनः लौटना मेरा संभव नहीं। इसलिए मैं आज धरती, वायु, आकाश, अग्नि और जल को साक्षी मानकर ये सौगंध खाती हूँ कि इस धरती माँ की गोद से जिसने मैंने जन्म लिया, जिस वसुधा के कारण इस वसुधा कुमारी का अस्तित्व है, आज मैं इसी धरती की गोद में समा जाऊंगी। नहीं सीते, सीते ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। आप मुझे कुछ भी सजा दे दीजिए, मगर ऐसा मत करे। आपके बिना, आपके वियोग में ये राम जी नहीं पाएगा। ये अनर्थ मत कीजिए। आप ये निर्णय बदल दे। हे धरती माता, यदि मैंने सदैव एक मर्यादित स्त्री का जीवन जिया है, यदि मैंने सदैव एक आदर्श पुत्री के धर्म का पालन किया है, यदि मैंने सदैव हर धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया है, तो हे जगत जननी वसुंधरा, मुझे आज अपनी कोख में शरण दे दीजिए। मैं आपसे ये विनय करती हूँ, ये समय आ गया है, अब ये समय आ गया है, मेरा आह्वान स्वीकार करें धरती माता। मुझे शरण दे दीजिए, मुझे शरण दे दीजिए। माते, माते, भाभी, भाभी, सीते, सीते। सीता माता की जय, रामचंद्र भगवान की जय। एक छोटा सा ही था जो मेरा एक कहते हैं ना कि प्रयास किया बहुत दिनों के बाद। Thanks a lot, Urmila ji. It was a new addition to our program, and it was really nice. It was a refreshing new performance. Great. Thanks a lot. And it brought in the sentiments of Sita Mata during a very sensitive time in the relationship of Ram Bhagwan and Sita Mata. So we are all grateful. Thanks a lot. उनको तो ये लीला करनी ही थी, लेकिन उनका जो त्याग था एक बहुत बड़े पर्पस के लिए, वो तो सबको मालूम है, लेकिन हमें उस सीता माता का त्याग नहीं भूलना चाहिए। Thank you. Thanks a lot. Now we have Surjit Sachdeva ji. He has some interesting information on Lankadipati Ravan, and his narration is going to be related to Ramayana as well. And he will also be, we'll also be hearing a devotional song from him. So I call on our own Surjit Sachdeva ji. या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार, केम छो। और
नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही आनंद की प्राप्ति हो रही है। ये जो प्रोग्राम चल रहा है कल से, अभी जो हमने अयोध्या की सैर की है, भजन सुना है और अभी एक्ट देखा है, ये बहुत ही उच्च कोटि का प्रोग्राम ये हो रहा है और बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। और जैसे कि भगवान श्री राम जी की बात चल रही है, माता सीता जी की बात चल रही है, रामायण का जो पात्र है जिसको हम अहंकार और वासनाओं का जिसको मानते हैं प्रतीक, रावण, जिसको जला करके, जिसको अग्नि भेंट करके हम दशहरा मनाते हैं, उसके बारे में साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में श्री कबीर जी, भगत कबीर जी का एक शब्द है, उसकी मैं विचार आपके साथ साझी करूंगा, आपके साथ करूंगा। तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 481 पर यह शब्द अंकित है। तो रावण के बारे में भगत कबीर जी आशा राग में क्या उच्चारण करते हैं? कहते हैं, लंका सा कोट समुद्र सी खाई, तेह रावण घर खबर ना पाई। ऐसा रावण जिसके पास लंका जैसा किला था, कोट गढ़, जिसके पास इतना मजबूत किला था लंका जैसा, और समुद्र जैसी खाई थी उसके आसपास। हम सभी जानते हैं कि उसी के ऊपर हनुमान जी ने और उनकी सेना ने भगवान राम जी का नाम लिख लिख कर पत्थर फेंके और एक सेतु बना, जिस पर चलकर भगवान राम जी रावण तक पहुंचे और विजय प्राप्त की। तो उसी का जिक्र कर रहे हैं भगत कबीर जी। लंका सा कोट समुद्र सी खाई, तेह रावण घर खबर ना पाई। आज कहते हैं कि उस रावण की कौन खबर ले रहा है, किसके घर में उसकी बात हो रही है, कौन उसकी चर्चा कर रहा है? कोई नहीं। जबकि भगवान राम जी का तो हम सभी नाम ले रहे हैं, उनकी सभी आराधना अर्चना कर रहे हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं, लेकिन कहाँ है रावण का नाम? फिर कहते हैं, क्या मांगो किछ थिर न रहाई। हे प्रभु, हे परमात्मा, आपसे क्या मांगो, कुछ स्थिर तो रहने वाला है ही नहीं। क्योंकि जब रावण जैसे चले गए तो यहाँ क्या पे स्थिर है? कुछ भी स्थिर नहीं है। देखत नैन चल्यो जग जाई। मेरे देखते देखते मेरी आंखों के सामने से ये जग चलता जा रहा है। आज एक जा रहा है, कल दूसरा जा रहा है, सभी चले जा रहे हैं। तो भगवान आपसे क्या मांगो, ये पूछ रहे हैं भगत कबीर जी। फिर रावण की बात करते हैं, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती। जिस रावण का 1 लाख पुत्र था और 1.25 लाख उसके नाती पोते थे, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तेह रावण घर दिया न बाती। उस रावण के घर आज दिया नहीं जल रहा है। कौन उसके घर में दिया जलाएगा? भगवान राम जी के तो हर मंदिर में, हर घर में, मूर्ति के सामने, फोटो के सामने हम दिया जला रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। पर रावण के घर कहाँ दिया जल रहा है, जिसका के आगे और लिखते हैं कि क्या क्या उसके पास था। चांद सूरज जाके तपत रसोई। कहते हैं कि उसकी रसोई दिन रात चलती रहती थी, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार था उसका, लाखों पुत्र और लाखों उसकी नाती पोते थे। तो उसके घर में तो रसोई चलती रहती थी दिन रात में। दिन में चलती तो सूरज उसकी रसोई तपाता था, और रात में उसकी रसोई चलती थी तो चंद्रमा उसकी रसोई को तपाता था। चांद सूरज जाके तपत रसोई, बैसंतर जाके कपड़े धोई। इतना परिवार
तो कहते हैं कि उनके घर में तो वो जो कढ़ाई चढ़े रहते थे, देगें चढ़ी रहती थी जिसमें कपड़े उबलते थे, आग पे जो भट्ठी में कपड़े, तब मशीनें नहीं थी ना जी, तो तब भट्ठी में डाल देते थे, आग जलती रहती थी, उसमें कपड़े उबलते रहते थे, फिर उनको साफ करते थे। तो इतना परिवार, कहते हैं ऐसे रावण का, जिसका कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तहना रावण घर दिया न बाती, चंद सूरज जाके तपत रसोई, बैसंतर जाके कपड़े धोई। मतलब इतना बड़ा परिवार, सब कुछ, सब लगे हैं। सूरज भी सेवा में लगा है, चंद्रमा भी सेवा में लगा है, बैसंतर मीन्स आग, अग्निदेव देवी भी सेवा में लगा हुआ है। तो फिर क्या है, अब कहते हैं कि वो भी नहीं रहे, तो क्या कहते हैं भगत कबीर जी, क्या कहते हैं, गुरमत राम में नाम बसाई। कहते हैं जिन्होंने, जिन गुरु सिखों ने, जिन गुरु वालों ने अपने हृदय में राम का नाम बसा लिया है, राम के नाम को जगह दे दी है, अस्थिर रहे न कतहु जाई, उनका मन कहीं डोलता नहीं है, इधर उधर भटकता नहीं है। जिनके हृदय में राम नाम ने वासा कर लिया हो, राम का नाम अंदर बस गया हो, उसका हृदय कहीं डोलता नहीं है, इधर उधर नहीं जाता है, अपनी स्थान से हिलता नहीं है, वो अस्थिर हो जाता है। कहत कबीर सुनो रे लोई, कबीर जी कहते हैं, हे लोगो सुनो, मेरी बात को अच्छी तरह से सुनो, ध्यान लगा कर सुनो, राम नाम बिन मुक्त न होई। कहते हैं राम नाम के बिना इस संसार से मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। इसलिए लोगों, कृपा लो, भगवान राम जी का नाम लो, उनकी कृपा ग्रहण करो, तभी यहाँ से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। यही एक संभावना है। तो सबको नवरात्रि की फिर से शुभकामनाएं, और जाते जाते 2 लाइन मैं माता जी के चरणों में अर्पित करना चाहूंगा। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे माँ, रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, बार बार बोलो जय माता की, नहीं सुनिया जय माता की। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का, सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का, रास्ता देख रही है माता, रास्ता देख रही है माता, अपनी आंख के तारों का, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया, चलो बुलावा आया है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
थोड़ा समय शायद ज़्यादा ले लिया मैंने। बहुत बहुत सभी का आभार। ये जो प्रोग्राम कर चल रहा है, मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी अध्यक्षा डॉक्टर प्रमला खार जी को कि कितना सुंदर आपने प्रोग्राम ये रचा है, ये सभी को साथ में लेकर के। और बहुत बहुत आभार है आप सबका, जो भी जुड़े हैं सबका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अति सुंदर था प्रोग्राम। आपका जो वर्णन था, it was very well thought. I mean, you have selected real good verses and brought beauty to this program. Thanks a lot, Surjit bhai. And आपने तो हमें nostalgic बना दिया. So we are at the fag end of the program. Just before we sign off on this program, I would like to give you a small glimpse on how Dasara is celebrated in Mysore. So a small background on that, and I'll just finish it with the clipping. So Mysore Dasara is a Nada Habba. So it translates to the state festival of the state of Karnataka, which was formerly known as the Kingdom of Mysore in India. Dasara is a 10-day festival starting with 9 nights called Navratri, and the last day being the Vijayadashami. So the importance of this is that the grand festival is observed on the 10th day of Hindu calendar in the month of Ashwini, which typically falls in the months of September or October of the Gregorian calendar. The Hindu festival of Dasara celebrates the victory of good over evil. So it was the day when goddess Chamundeshwari killed the Asura king Mahishasura, who had the head of a bison and body of a man. That was the image that was being depicted on our clip when we had the presentation. And Mahishasura is the Asura whose slaying by the goddess gave the city the name Mysuru. And goddess Chamundeshwari now resides on the Chamundi hill in Mysore. So the ceremonies and a major procession are traditionally presided by the king of Mysore even today. The city of Mysore has a long tradition of celebrating the Dasara festival with grandeur and pomp to mark the festival. So this will be the 411th year it is being celebrated without break. And the evidence suggests that the festivities did occur even during the Vijayanagara Empire period in the 15th century. So let's all go and have a look at that video. It's a small video, but I'm sure it's going to enthrall you with that video, and that will be the last part of the program tonight.
Dhanyawad sabko. It was a fantastic program, I believe, and the participants have done a brilliant job compiling all the information and bringing it to all of us here. I would like to personally thank everyone for their hard work, and thanks a lot for joining us this evening. That concludes today's program. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Suhas. Very nice. Much Great job, appreciated. Suhas. Great. Thank you. Yes. Thanks, everyone. Yes. Glimpses of Ayodhya. We were there in 2015.